In the name of Allah, who gives, and forgives. This is Yasir Aslam, and I'm going to deliver you another very interesting topic in your course of English comprehension and composition. I hope you guys will understand this lecture very well, as I have discussed in my previous lecture that was about the brainstorming and clustering and outlining. We had discussed a very interesting skills about the pre-writing, how to do a pre-writing, in which we had discussed about the brainstorming technique and how to brainstorm about any topic, and in which I explain you guys in detail about the brainstorming by providing some examples and giving you some tasks to how to make a brainstorming outline about any topic. Still, if you have any question, you can ask me during the lecture in the discussion session, so that the queries that you have made can be removed. So, as in my previous lecture, I also told you about some essay writing techniques, essay writing types. I had also discussed about you, and I told you guys that I have I will explain all these categories in detail in my upcoming lectures. So today I will explain one of the most important and most argumentative type of the essay. Before this, I would like to introduce all the four types of the essay. The number first type of the essay writing is that is argumentative writing, and then we have analytical writing, in which we will discuss how to uh, perform a writing task by using some analytical skills, and after that we will discuss about some narrative writing and some descriptive writing skills, and I will give you some examples related to all these writing types of your upcoming lectures. So now today I'm going to give a concept about the argumentation essay type of the writing. So let's start reading by its definition. First of all, we have to know what is argumentation essay, how we can explain it in by words. Like, as its name is, this type's name is called argumentation essay. So argumentation comes from arguments. So when there is arguments, there will be some logic, and you have to give some comments and some context. That context was not a general context, but you have to give some argumentation, some logical point of view regarding your topic. So let's start by the definition. It is said that an argumentative essay states the thesis in the introduction, supports the thesis in the body, and provide a purpose for the reader in the conclusion.
तो जब भी हम आर्गुमेंटेशन की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हमने आर्गुमेंटेशन दे के अपनी किसी भी बात को या अपने किसी भी पॉइंट को आर्गुमेंटेशन दे के उसको सॉल्व करना होता है। तो ये सारी जो बातें होती हैं ये हम इसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम ये करते हैं कि हमने कोई भी ऐसे लिखना है, फ़र्ज़ करें तो हम उसको अपना जो थीसिस की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमने थीसिस की स्टेटमेंट बनानी है, थीसिस इज अ स्टेटमेंट, सो वी हैव टू सपोर्ट दैट स्टेटमेंट। ठीक है जी, हमने उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना होता है। तो सपोर्ट करने के लिए हमने उसको आर्गूमेंट्स के साथ सपोर्ट करना है। ठीक है, कि फ़र्ज़ करें हम कोई भी बात अगर कहें कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कोई भी बात कह रहे हैं, सपोज़ कि मैं कह रहा हूँ कि मैं आज शाम को लाहौर जाऊँगा, लेट्स सपोज कि आई एम गोइंग टू लाहौर टुडे नाइट, सिर्फ इतनी बात कह दूँ। ठीक है, तो अब ये बात तो मैंने क्लियर कर दी कि मैं लाहौर जाऊँगा, बट व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस स्टेटमेंट? वी हैव टू आर्गूमेंट, वी हैव टू गिव सम आर्गूमेंट्स, ठीक है, टू प्रूव दैट स्टेटमेंट, टू मेक पावरफुल दैट स्टेटमेंट। तो हमें इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सपोर्ट करना है तो बाय प्रोवाइडिंग सम लॉजिक्स कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, वाई, बिकॉज आई हैव टू बाय सम वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स that is not available in my city, so that's why I'm going to Lahore to buy some very informative and very unique books from Lahore. Or you can give some other logic to support your thesis, right? कि आप कोई भी लॉजिक दे सकते हैं, लेकिन वो लॉजिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कोई भी बात कह रहे हैं तो वो ऐसे ही उठ के कह रहे हैं। तो यू हैव टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेटिव लॉजिक बिहाइंड योर थीसिस स्टेटमेंट। तो पहला वो कह रहा है कि ये जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, ठीक है, इसमें जो होता है, जो फर्स्ट पार्ट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसे के जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। द ऐसे कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। The one is, the very first is called the introduction, and then I explain about the body of the essay, and then there comes the conclusion. ठीक है, तो फिर मैंने आपको डिटेल से बताया था कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने जो थीसिस बनाना है, जो आपने जो सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने उसको आपने क्या करना है, प्रोवाइड ए पर्पस फॉर द रीडर इन। ठीक है, तो आपने उसका पर्पस जो है वो उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, फिर जो है आपने उस थीसिस का जो लॉजिकली जो उसके बारे में आर्गुमेंटेशन से जो लॉजिकली जो मटेरियल आपके पास है उसको आपने द बॉडी ऑफ द एसे में उसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, बाय गिविंग सम आर्गुमेंटेशन अबाउट दैट थीसिस, यू नो, टू दैट सब्जेक्ट, कि जो आपका टॉपिक है उसको सपोर्ट करने के लिए आपने जो बॉडी ऑफ द एसे होगा उसमें आपने उसको क्या करना है, लिख देना। ठीक है, एक्सप्लेन कर देना। फिर आपने क्या करना है, फिर आपका जो कंक्लूडिंग पार्ट होगा, तो यू हैव टू कंक्लूड द थीसिस स्टेटमेंट एंड यू हैव टू प्रूव द थीसिस स्टेटमेंट बाय सम कंक्लूडिंग वर्ड्स। ठीक है, अब कंक्लूडिंग वर्ड्स जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंक्लूडिंग वर्ड से मुराद ये है कि आपने उसकी जो आउटलाइंस हैं उनको आपने सेंटेंसेस के फॉर्म में मज़ीद कंसाइज करके उनको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो था आपकी बॉडी में मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ये चीज़ें थी।
और जो एंड पे कंक्लूजन देनी वो आपका उसका कंक्लूडिंग होल ऐसे का कंक्लूडिंग पार्ट होगा. I hope you guys understand the whole concept that I am delivering to you guys about the argumentation and say how to arguments about any thesis or any subject. नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जो है वो थीसिस के बारे में पढ़ेंगे. थीसिस स्टेटमेंट जो मैंने इधर मेंशन की है कि वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद समझेंगे हम. तो नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स आइडियाज इन ए लॉजिकल एंड कन्विंसिंग मैनर. कि जो आपका प्रेजेंटेशन का जो जो आपका बताने का जो स्टाइल होगा, स्ट्रक्चर जो होगा उन आइडियाज़ को, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए. जैसे मैं यहाँ पे मैंने इसको लॉजिकल को बोल्ड किया. इट मीन्स दैट इट इज़ रियल इम्पोर्टेंट कि आपका जो उसको प्रेजेंटेशन का मूड होगा वो दैट विल बी वेरी लॉजिकल एंड कन्विंसिंग. ठीक है. अगर वो लॉजिकल नहीं होगा तो फिर आर्गुमेंटेशन क्या होगी, आर्गुमेंटेशन तो ना हुई. ठीक है. तो फिर कन्विंसिंग कैसे, कि जब आप आपकी आर्गुमेंटेशन से कोई बात जो है वो प्रूव ही नहीं हुई. कोई फर्ज करें अगर आप किसी टू पर्सन आर टॉकिंग विद ईच अदर अबाउट एनी इशू and one person has very strong argumentation and has very logical points about that topic, then what will happen? He can defeat the other person because he has a strong, he can convince the other person because he has a strong argumentation. ठीक है. कि जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हो और एक के पास जो है वो स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स हो, ठीक है, और एक के पास जो है वो लॉजिक ना हो, वो ऐसे ही एक स्टेटमेंट पास कर दे, बट ही है ही के he hadn't any knowledge about anything he had spoken to in front of the person. कि अगर उस पर्सन के सामने जो वो बात कह रहा है कि उसके पास अगर लॉजिक्स नहीं है तो वो अपनी स्टेटमेंट को कैसे कन्विंस करवा सकता है. ठीक है. तो दैट इज़ द मेन पॉइंट कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग जो होगा वो आपका लॉजिकल होगा. सो हियर you guys have to think about this matter कि in the argumentation method, in the argumentation technique, your style of writing is logical and convincing. Understand? So यहाँ तक तो बात हो गई हमारी जो आर्गुमेंटेशन की थी. आर्गुमेंटेशन की हमने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा कि आर्गुमेंट्स हमने कैसे करने हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर व्हाट इज थीसिस, कि थीसिस क्या होता है. तो उसको हम देखते हैं कि थीसिस जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं. दिस स्टेटमेंट this should be clear, argumentative and qualified if necessary. कि ये जो स्टेटमेंट होगी, ये जो थीसिस स्टेटमेंट होगी, ये जो मेन स्टेटमेंट होगी वो क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. वो आर्गुमेंटेटिव होनी चाहिए कि उसके बारे में कोई ना कोई आर्गुमेंट्स हम पास कर सकें. ठीक है. एंड क्वालिफाइड होनी चाहिए कि उसके बारे में कोई ना कोई हमारे पास जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके बारे में कुछ हमारे पास मटेरियल जो है वो होना चाहिए. ठीक है. उसको प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट वो कह रहे हैं बी वेयर ऑफ मेकिंग ब्रॉड जनरलाइजेशंस अबाउट ऑल एंड नन. ठीक है. कि वो कह रहा है कि जब आपने थीसिस स्टेटमेंट को चूज करना है तो दैट स्टेटमेंट शुड नॉट बी वेरी ब्रॉड. ठीक है. तो वो स्टेटमेंट फिर जो होगी वो ब्रॉड नहीं होनी चाहिए. तो कैसी होनी चाहिए, दैट स्टेटमेंट शुड बी लॉजिकली. ठीक है. वो स्टेटमेंट लॉजिकली होनी चाहिए और वो कैसी होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए.
उसमें ये ऑल और नन जब आ जाएगा तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे सारी क्लास के बारे में बता दो, कि सारी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी यू हैव टू टेल मी द करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फर्ज करें मैं CR से कहता हूँ कि यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द न्यू कमर्स, तो क्या रिजल्ट होगा? He will not able to explain all the characteristics. Why? Because it's broad term. All the students. He didn't know most of the students, their backgrounds, their knowledge, their skills. He didn't know. So what will be the result? The result will comes in failure. ठीक है। तो हमारा जो मकसद, जो क्वेश्चनिंग का मकसद हुआ, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन किया उसका जो मकसद हुआ, उसका एम जो हुआ वो तो फुलफिल नहीं हुआ, कि CR को तो पता ही नहीं है क्लास का, ठीक है। तो देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि योर स्टेटमेंट, जो थीसिस स्टेटमेंट होगी, दैट शुड बी वेरी वेरी कंसाइज, क्लियर एंड लॉजिकली एंड वेरी स्पेसिफिक। अंडरस्टैंड? तो ये तो हो गया थीसिस स्टेटमेंट के बारे में। देन जैसे कि हमने ऐसे की जो 3 पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था, उनको हम मज़ीद आर्गूमेंटेटिव ऐसे टाइप में उनको मज़ीद हम इधर डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जी कि इंट्रोडक्शन में क्या होगा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू। कि जब आपको जो स्टेटमेंट मिल गई या कोई टॉपिक ऐसे का मिल गया, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to explain the importance of the issue। कि जो इशू होगा, जो क्वेश्चन होगा, जो टॉपिक होगा, जो आपके पास थीसिस स्टेटमेंट होगी, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक, दैट स्टेटमेंट, दैट थीसिस। अंडरस्टैंड? तो फिर आपको क्या होगा कि उसके बारे में आपने उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। देन आपने क्या करना है इंट्रोडक्शन में, देन यू हैव टू समराइज द अपोजिंग साइड्स आर्गूमेंट्स वेरी ब्रीफली। कि जब फिर आपने क्या करना है, आपने समराइज करना है, उसकी समरी को एक्सप्लेन करना है, लिख देना है, ठीक है। जो आर्गूमेंट्स आपने सोचे होंगे या आपके माइंड में होंगे, वो आपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में उसको जस्ट एक समरी के तौर पे लिख देंगे। अंडरस्टैंड? Then you have to provide a thesis statement which recognizes your disagreement with the other side's arguments and states your position clearly। तो फिर आपने लास्ट पे क्या करना है, जो थीसिस स्टेटमेंट है उसका जो है वो एम जो है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है कि वो उस स्टेटमेंट का मकसद क्या है, ठीक है, वो आपने क्लियरली उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द एसे कि आर्गुमेंटेशन आप पढ़ रहे हैं, आर्गुमेंटेशन ऐसे, उसमें आपने पढ़ा कि आपने आर्गुमेंट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आर्गुमेंटेशन को कैसे यूज़ करना है। फिर हम अब इस स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं कि हम बॉडी ऑफ द ऐसे जो है उसमें आर्गुमेंटेशन को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो पैराग्राफ इसमें मैंने डिटेल से मेंशन किया है कि पैराग्राफ 1 में आपने क्या लिखना है, फिर पैराग्राफ 2 में आप क्या लिखेंगे, एंड देन व्हाट यू विल राइट इन द थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, एंड कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ 1। तो पैराग्राफ 1 में वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, स्टेट योर अपोनेंट्स फर्स्ट आर्गुमेंट एंड काउंटर दैट आर्गुमेंट डायरेक्टली विद योर पॉइंट ऑफ रीबूटल, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना ये है कि आपने जो है वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो आपका फर्स्ट आर्गुमेंट है उसको आपने अपने अपोनेंट्स के सामने या अपना जो राइटिंग स्टाइल है उसमें आपने लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने सपोर्ट योर पॉइंट्स
with examples and research to strengthen your position. फिर आपने एग्जाम्पल्स देनी है उस पॉइंट के बारे में, एग्जाम्पल देनी है। जैसे मैं कोई भी चीज़ आपको समझाने के लिए उसको पहले डेफिनेशन करता हूँ, फिर आपको उसके बारे में एग्जाम्पल्स देता हूँ, ठीक है। ताकि आपको डेफिनेशन अगर समझ नहीं आई तो आपको जब एग्जाम्पल्स दी जाएँ तो आपको वो क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह आपने राइटिंग में भी जो पैराग्राफ 1 होगा उसमें आपने पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आपने फर्स्ट जो आर्गूमेंट होगा वो पास करना है, एंड देन यू हैव टू गिव सम एग्जांपल्स एंड सम रिसर्च वर्क। और रिसर्च वर्क मीन्स कि आपने उसको लॉजिकली उसके बारे में उसको सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि अपना जो आपका जो पॉइंट है वो मजबूत हो जाए, ठीक है, पावरफुल हो। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है, स्टेट योर अपोनेंट्स second argument and counter that argument directly with your point of rebuttal, ठीक है। फिर पैराग्राफ 2 में आपने क्या करना है, पैराग्राफ 2 में आपने अपना सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपने उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर उसको सपोर्ट करना है, उसी पॉइंट को आपने सपोर्ट करना है विद एग्जांपल्स एंड सम लॉजिक, ठीक है। यानी बताने का मकसद ये हुआ कि आपने जब भी कोई आर्गूमेंट देना है तो उसके साथ आपने उसकी एग्जांपल या उसकी जो लॉजिक है वो आपने उसको ज़रूर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, टू सपोर्ट योर आर्गूमेंट स्टेटमेंट। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड विद मी दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। तो फिर इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या करना है, यू हैव टू गिव योर सेकंड आर्गूमेंट एंड यू हैव टू सपोर्ट your argument by providing some examples and by providing some logical arguments regarding your that point that you have discussed in your second paragraph. And then we are going to talk about what will you write in your third paragraph, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे उसको हम समझते हैं। State your opponent's third argument and counter that argument डायरेक्टली विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर आपने जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको आपने वो करना है, उसको राइट डाउन करना है, ठीक है। फिर उसको सपोर्ट करने हैं आपने सम एग्जांपल्स एंड सम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। कंटिन्यू इन दिस वे अंटिल यू हैव एग्जॉस्टेड योर एबिलिटी टू प्रेजेंट एंड काउंटर द अपोजिशन। तो ये स्टेटमेंट लिखने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 को मेंशन किया, बट you can write paragraph 4, 5, 6 and until that you think that it's enough to fulfill the whole requirement of the question, the thesis statement, okay. Then next is we discussed in our previous slides that essay has three parts. One is concluding, and one is introduction, and second is the body of the essay, and then third is the conclusion. So we are going to discuss the conclusion, how to write down the concluding part in the argumentation type of the essay. आपने क्या करना है, the first point is rephrase your point, rephrase your main point. अब rephrase का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं कि what is rephrasing. रीफ्रेजिंग मीन कि एक फ्रेज है, ठीक है, एक फ्रेज है, एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, ठीक है, उसको आपने रीफ्रेज करना है, उसको दोबारा से लिख देना, ठीक है। मतलब उसको जो रीफ्रेजिंग में आप ये करते हैं कि जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है, यू हैव टू चेंज देयर वर्ड्स बट नॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो उसमें आप वर्ड्स को चेंज करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, बट अगर पहली स्टेटमेंट को हम पढ़ के अपने माइंड में कोई बात सोचें, उसका मतलब सोचें, तो वो वही होना चाहिए जो आपने रीफ्रेज करके किया, ठीक है। यानी दोनों का जो मीनिंग है वो सेम होना चाहिए, बट
रिप्रेजेंटेशन उनकी जो है वो लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। देन समराइज योर मेन आइडिया इन ऑर्डर टू शो हाउ स्ट्रॉन्ग योर पोजिशन इन ओवर योर ओपोनेंट। फिर आपने जो अपने पॉइंट्स हैं उनको समराइज करके लिख देना है, ठीक है, स्ट्रॉन्गली समराइज करना है, ताकि जो है वो अपोनेंट्स जो है यानी जो पढ़ने वाले रीडर्स जो हैं वो उनको आपकी पोजीशन का आइडिया हो जाए कि आपने ये जो लॉजिक्स की हैं ये कैसे की हैं, ठीक है। देन प्रोवाइड ए फाइनल थॉट फॉर योर रीडर्स। तो फिर आपने जो लास्ट पे आपने फाइनल बताना है कि आपने ये जो कोई भी फॉर एग्जांपल आपको ऐसे था उस पर आपने आर्गूमेंट सारा कुछ देने के बाद आपने फाइनल में लिख देना है कि जी इसका मकसद ये था, ठीक है। फाइनल थॉट आपने इसमें देनी होती है। आई होप till now you guys were very familiar with this today's type of the essay. Here is some exercise example that you guys have to do with your it's like a home assignment, homework assignment. If we have a time we can arrange during the lecture and discuss with each other. इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, फिर आपने उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना। अब इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बारे में बैकग्राउंड लिखना है आपने, फिर सपोर्टिंग एविडेंस यानी पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड देन पैराग्राफ 3 आपने लिखना है। अब इन तीनों पैराग्राफ में आपने कैसे लिखना है वो मैंने आपको अभी प्रीवियसली बता दिया है कि आपने पहले एक पॉइंट देना है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट करनी है, कोई आर्गूमेंट देना है, फिर आपने उसकी एग्जांपल और उसको लॉजिक के साथ प्रीवियस रिसर्च के साथ इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। फिर काउंटर आर्गूमेंट्स जो होते हैं वो आपने करने हैं, फिर सम अप कंक्लूजन आपने कैसे करनी है, ठीक है, कंक्लूडिंग पार्ट, ठीक है। सो व्हाट कंक्लूजन, ठीक है, एंड पे आपने लिखना है कि मैंने ये आर्गूमेंट्स दिए थे तो कंक्लूजन क्या निकली है, वो आपने एक स्टेटमेंट वहाँ पे 2-3 लाइनों में उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है जी। तो थैंक you so much for this session. So now we are going to discuss about it.